अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हया फातिमा इकबाल है और मैं हाजिर हूँ फुल ब्राइट वुमेन्स पॉडकास्ट की एक एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है जहरा जबीन शाह। Zehra is an MFA in creative writing with a specialization in poetry from Mills College, which is a university in California. Zehra has gotten published in journalism platforms. She is currently working on a manuscript of her original poetry collection in English and Urdu. So she's a writer. And Zehra has also gotten published in international poetry journals. I want to really just start the conversation, Zaira, by welcoming you and by asking you a very simple question कि भाई आप राइटर कैसे बनी और किन चीजों ने पुश किया कि आपको राइटर ही बनना चाहिए? Firstly, thank you so much and for the lovely introduction. I'll be honest, that is definitely a very difficult question because I wish I knew why, why I became a writer, because it was something very sort of natural since I felt that I could really read and write. I would just read for hours, and I would just write in my car while we would fill petrol. तो मैं डायरी लेके जाती थी गाड़ियों में एक्सेट्रा, मतलब जब भी जब अगर मौका मिलता था, just to kind of always be writing. So that's always been there. But now that I think about it as an adult person, okay, like why was I so obsessed with reading and writing that I couldn't even leave my diary at home and I would need to write it anywhere. Or if we were going somewhere on a bike and like maybe I would just have my diary ke bas mere saath hi ho. That I think that I'm really interested in acute observations about people and the world. So those really interest me. And I also feel that I'm a really sensitive person. So sensitivity and writing go hand in hand, according to me. और ये कब शुरू हुआ? मतलब since what age was this diary being taken everywhere? Yeah, yeah. I think it was really since I could actually write ABC, so 7 or 8 years, since I was 7 8 years old. एंड सो आपकी जो अर्ली राइटिंग्स थी या अर्ली स्क्रिबलिंग थी बेसिकली वो किस तरह की रीडिंग और राइटिंग से इंस्पायर्ड थी इनिशियली? Hmm. Yeah, yeah, that's a very, very good question. So initially it was inspired by a lot of English, क्या कहते हैं, bedtime stories और जैसे novellas होते हैं and वो जो बच्चों की specific collections आती थी, so उससे inspire होता था because I used to go, and I mean my entire education primarily was in an English medium school, so that was the access point and that was encouraged the most कि आप यही पढ़ें ज़्यादा और बाकी लैंग्वेजेस को मतलब इतना मतलब नहीं दें focus. So what was written in those bedtime stories were characters that I feel I couldn't relate to, but somehow I had established a connection with them because I would listen to them so many times and I would read them over and over again in repetition. So obviously a lot of them were Eurocentric, just say names like Mary or Jack, and they're going in some, मतलब, I don't know, Chicago का कोई park or maybe London का जो bridge है, the famous London Bridge that I hadn't ever seen, but I knew exactly कि उसके हर एक कोने का मुझे पता था, and I knew कि how it would look like and color क्या होगा and which characters go there and who fall in love, like which people fall in love there, etc. All of those details I knew. But yeah, so these were the bedtime stories I suppose I had grown up with, and the one huge part also contextually is that I didn't grow up in Pakistan, so I grew up in different countries in Africa till I was 13. So ek wo bhi tha, like divorce of my actual country, so whatever was available there, but obviously the countries that I was in were also sort of influenced by the West a lot, and the schools that I was a part of, it was a norm to read books that were imported from, I don't, like maybe UK or America, etc. तो फिर इस तरह की चीजें I grew up reading.
which influenced my writing at first. सो ज़रा, एक बात ये है जो अभी आपने एक बज़ाहिर छोटी सी एग्जांपल दी कि भाई किताबों में हम बचपन से Hmm. पाकिस्तान में भी जो लोग अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाते हैं वो वाकई Hmm. में मैरी और जॉन को ही पढ़ते हैं और बर्फबारी के बारे में पढ़ते हैं और ऐसे ट्रीज के भी नाम सीखते हैं जो हमें होता है कि हमने देखा भी नहीं है आज तक हमने। तो Hmm. Hmm. ये तो है कि मतलब एक और कल्चर और एक और अम, दुनिया के बारे में हम ज्यादा पहले जानते हैं बजाय इसके कि हम खुद को जानना शुरू करें। और Hmm. अभी हम आपसे ऑब्वियसली मतलब डिटेल में कॉन्वर्सेशन तो करेंगे ही, लेकिन आपकी जो अपनी पर्सनल जर्नी है, पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी भी है, चाहे वो एज अ राइटर हो, एज समवन हु इज लर्निंग म्यूजिक हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा एक बड़ा आई थिंक एक बड़ा रोल है डीकॉलोनाइजेशन का। राइट, और डीकॉलोनाइजेशन हम ऑब्वियसली ये क्लेम नहीं कर रहे कि आप कंप्लीटली या हम कंप्लीटली डीकॉलोनाइज हो गए हैं, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल काम है वो, और काफी एक इनविजिबल किस्म की एफर्ट इसमें काफी ज्यादा लगती है। बट मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि अब कॉलोनाइजेशन के बारे में बात तो बहुत होती है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, लेकिन अभी भी उसके बारे में बात थोड़ी बंद कमरों में होती है, यानी कुछ लोग आपस में ही कॉलोनाइजेशन की बात ज्यादा करते रहते हैं। और फिर हर फैमिली में एक अंकल होते हैं जो कहते हैं कि भाई गोरे का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें रेलवे का सिस्टम तो दिया। तो अगर कोई बच्चा हो या कोई टीनेजर हो तो उसको कंफ्यूजन रहती है कि ये वाले अंकल ठीक है जिस जो इरिगेशन Hmm. सिस्टम, कैनाल सिस्टम की तारीफ करते हैं और रेलवे सिस्टम की तारीफ करते हैं, क्योंकि बहरहाल मसला ये भी है कि रेलवे सिस्टम हमने इम्प्रूव भी नहीं किया है तब से लेके अब तक। तो कभी कभी ऑन अ बैड डे ये लगता है कि हाँ शायद बाकी बहुत कमाल किया है रेलवे सिस्टम देके, बट हाँ, ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली। उन्होंने किसी और वजह से बनाया था। लेकिन दूसरी तरफ जो है, हम दुनिया को देखते हैं तो हमें ये भी लगता है कि लोग हमें खास तरह से देखते हैं। वी डोंट फील इक्वल एट द एयरपोर्ट, वी डोंट फील, हम किसी वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, हम इक्वल तो फील करते हैं जब तक सब अच्छा होता है, हमें बहुत हुकूक मिलते हैं, हमें वो वही हुकूक मिल जाते हैं जो हमें अपने मुल्क में रहते हुए नहीं मिलते। लेकिन जब हालात थोड़े से आगे पीछे होते हैं, कोई रेशियल टेंशन होती हैं, कोई पॉलिटिकल टेंशन होती हैं, तो हमें फिर कभी कभी याद भी आता है कि अच्छा, maybe we are not as equal as the local people, right? आप मुझे ये बताएं कि आपकी जर्नी के बारे में तो हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप किसी को समझाना चाह रही हो या किसी को एग्जाम्पल्स देना चाहें कि भाई ये जो हमारी दुनिया है, हमारी सोसाइटी है, हमारा मुल्क है, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एवरीडे लेवल पे क्या क्या चीजें हैं जो कि एक कॉलोनाइज्ड मुआशरे की मिसालें हैं। व्हाट आर ऑल द वेरियस थिंग्स अराउंड अस दैट आर अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। ये सवाल भी मैंने आपसे अंग्रेजी में पूछा है, आयरनी काफी ज्यादा है, लेकिन आप बताएं, आप जरूर बताएं हमें हाँ, इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, चाइल्डहुड से। ठीक है, दिस इज व्हेन आई वाज इन इथियोपिया, अदीस अबाबा, जो कैपिटल सिटी है इथियोपिया का। और आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल आई कैन थिंक ऑफ फ्रॉम माय चाइल्डहुड, कि जिससे मुझे एहसास हुआ बाद में जाके कि अच्छा, इस इधर ये हो रहा था। जबकि उस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, मतलब कोई अजीब सी फीलिंग हुई थी कि अच्छा, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ऑब्वियसली आई डिडंट हैव द वर्ड्स, लैंग्वेज उसका जब नहीं होता तो आप नहीं उसको सही से सोच सकते। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था दैट मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो इथियोपियन थी, हर नेम इज मैग्दा। एंड देन एक और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम था क्लॉडिया, एंड शी वाज इटालियन। ठीक है, एंड आई वाज पाकिस्तानी। सो वन डे वी डिड दिस गेम जिसमें हमने पता नहीं क्या स्किन कलर्स हमने कंपेयर करने थे। सही है, तो एकदम से पता नहीं कहाँ से किसने क्रिएट किया है, समझ नहीं आई। लेकिन हमने, आई थिंक कोई रिंग पॉप्स होते हैं वो हमने डालने थे, एंड देन उसके बाद वी हैड टू कंपेयर के किसके हाथ पे सबसे अच्छा लगता है। हम्म। मैंने अपना हाथ रखा, एंड आई हैव ऑब्वियसली ब्राउन स्किन, लाइक। तो
एक हाथ टेबल पे हो गया, and then my other friend Magda जो Ethiopian थी, she obviously has dark skin, तो African sin, she put her hand next to mine, and then Claudia जो Italian थी, जिसकी जो गोरी थी, she put her hand next to Magda's, and we're only like 6 years old. Oh my ठीक है, तो God. we have no concept of Yeah. race, skin Yeah. color, colonization, decolonization, like हाँ. these fancy words. And then everyone had to vote कि सबसे अच्छा किसका लग रहा है, फर्स्ट नंबर में कौन कौन किसका हाथ आएगा, सेकंड पे किसका आएगा और तीसरे पे किसका आएगा. तो फिर सबने वोटिंग दी. क्लॉडिया वॉन, जो गोरी थी, शी केम फर्स्ट, एंड इवन शी वोटेड फॉर हरसेल्फ. Amazing. So Confidence that था. happened. Yeah, confidence था. And then second number पे I came. Okay. So the brown skin came, and everyone also voted for me, मतलब वोट के हिसाब से. और तीसरे पे जो अपने ही शहर में रह रही है, अपने ही मुल्क में रह रही है, and majority 80% classmates are African, are Ethiopian, are also from other African countries. She got the least votes. Or So did she also vote for herself as number 3 or something? I don't remember that. I don't know. I was too Because, young. yeah. But I clearly remember that Claudia voted for herself. Because मुझे याद है कि I was like, oh, अच्छा, उसने अपने लिए vote किया. You can vote So for yourself. yeah, yes, you can. I also voted for Claudia. So I guess मतलब Right. मेरे दिमाग में भी हो रहा होगा कि अच्छा, ओ, उसकी ज़्यादा, you know, like fairer skin है मुझसे, तो it should be number one. तो खैर, I don't know, end में सबको पता नहीं क्या jellies मिली या कुछ हुआ, लेकिन this happened, this little Wow. game happened. So I remember at that point, even though I was a kid and I was enjoying and बस हम, you know, तफरी कर रहे थे, but मुझे थोड़ी अजीब feeling भी हुई थी कि मुझे समझ नहीं आ रही है, कुछ ऑफ फील हो रहा है, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट Right. इज. और आप 6 एंड साल के देन हैं और आपको किसी ने, क्लॉडिया के भी माँ बाप ने शायद उसको सिखाया ना हो बिठा के ये, बट कहीं से. एग्जैक्टली, हाँ. हाँ. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज लाइक इट्स सो इंट्रिकेट और इट्स इनग्रेन्ड कि जब से आप पैदा हुए हो आपको पता भी नहीं होता, तो बहुत सबकॉन्शियसली, यू नो, एक माइंडसेट बन रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता. एंड एक और इंसिडेंट जो बहुत मुझे क्लियरली याद है इज दैट, सो आई ऑब्वियसली हमारे थोड़े से बाल सिल्की से होते हैं, आई गेस नॉट एवरीबडी इन पाकिस्तान, बट सम पीपल ऑब्वियसली हैव कोर्स कर्ली हेयर एक्सेट्रा, बहुत रेंज है हमारे में भी, बट maybe we might find more of like straighter hair हमारे region में. तो Ethiopian women braid their hair मतलब बचपन से, and then वो इस तरह से उनको महजूर रखती हैं so that वो मतलब फटे नहीं, and they have really thick hair. So everyone would touch my hair and be like, oh my God, it's so silky, it's so soft, or it's so nice, or your hair is better than mine. और जबकि मुझे उनके बाल ज्यादा अच्छे लगते थे कि ओ आपके इतने मजे के हैं, घुंघराले हैं, और you know like एक texture आ रहा है. लेकिन this also I clearly remember that people just touching my hair. So I also used to feel weird कि भाई हमेशा मेरे बाल क्यों touch हो रहे हैं. And सही है, मे बी अटेंशन मतलब पसंद होगी मुझे एज अ किड कि oh wow, look, I'm so beautiful, this that. But also it was like whenever a white person or white kid would come, it's like oh, her hair is better because it's lighter. तो फिर आप साइड पे हो You're जाते. always number 2 then. I'm second best. Yeah, हमेशा. always second best, losing to the white Yeah. person. Exactly. And but what's sadder is like the native person is always last. They don't even get a position. So I'm mentioning this, and of course it's not contextual to Pakistan at all, but just a very interesting example that literally as a kid, as from a 6-year-old's eyes, I've seen 3 races just being pitted against one another. Obviously not intentionally because everyone was really, really young, but just a very, very clear example जो हम देख सकें. It's not just a metaphor, it's not academia में कोई writing नहीं है, it's like असल में एक example है. फिर जब आप 13 साल की थी तो आप पाकिस्तान आ गई, राइट? और तो पाकिस्तान में, आई मीन, जरूरी नहीं है कि अर्ली टीन्स में कुछ इस तरह की एग्जांपल्स आ रही हूँ, बट एज यू ग्रू ओल्डर एंड यू नो यू बिकेम अ मोर अवेयर पर्सन, यू वर इन हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, उस वक्त आपको मतलब एज अ यंग एडल्ट किस तरह की एग्जांपल्स यहाँ पे नजर आ रही थी जो यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में स्क्रीम कर रही हो कि यार ये तो कुछ मसला है? Yeah. तो उसके लिए I would say definitely skin color again was highlighted
बिकॉज यहाँ और ये आपका जवाब है, मतलब मेरा जवाब है टू योर क्वेश्चन के मतलब पाकिस्तान में आप कहाँ देखती हैं कि कॉलोनाइजेशन हो रही है, हमारी कलोनियल थिंकिंग इज स्टिल प्रेवलेंट। डेफिनेटली स्किन कलर में कि नो मैटर हाउ गुड योर स्किन इज, क्लियर हो, ग्लोइंग हो, जब तक वो गोरी स्किन नहीं होगी तो फिर लोग कहेंगे कि साफ नहीं है। तो इस पे मेरी बहुत डिबेट होती थी घर वालों से कि साफ क्या मतलब ओके फाइन, आई एम नॉट उस तरह से गोरी फेयर नहीं हूँ, लेकिन अगर स्किन मेरी सही है और आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट और पिंपल्स नहीं आ रहे वगैरह, तो इजंट दैट इनफ फॉर यू गाइस? तो दे लाइक नहीं नहीं, उसकी बात नहीं हो रही, बस साफ होती है ना, एक बस सफाई की चीज होती है, तो इसलिए तो इसलिए दूध ज्यादा पियो, ये करो। एंड आई वुड नॉट गेट इट, बिकॉज़ आई एम लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज वैसे तो कुछ नहीं हो रहा स्किन को, तो फिर हाउ इज इट अनसाफ, मतलब हाउ इज इट, उसका ऑपोजिट क्या होगा, फिर डर्टी गंदा होगा ना, होगा, हाँ, मतलब साफ का ऑपोजिट गंदा तो गंदा होगा। है, हाँ। हाँ गंदा है, तो उसका आप कह रहे हैं कि गंदी स्किन है जस्ट बिकॉज सांवला रंग है एक्सेट्रा। तो फिर वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो खैर मतलब दिस थिंग आई विटनेस, एंड आई थिंक पाकिस्तान में आया हुआ था बिकॉज वहां तो वो था ना, एक कॉन्ट्रास्ट था कि हम्म। काले लोग होते हैं एक्सेट्रा, तो हाँ, उनकी स्किन के सामने तो हमारी जो ब्राउन स्किन है वो मतलब ज्यादा गोरी लगती हाँ, है। जीत जाता है तो आराम वहां से। आई नेवर हैड टू हियर, हाँ जी, हम्म। until a white person comes, Until until Claudia Claudia comes in. comes. So, so I never had to hear these comments kabhi bhi in the African countries I lived in. But then, जैसे I came back to Pakistan, so ekdam se this narrative was being put against me, and I saw this in school. Then, फिर obviously I joined school. I joined I think in grade 6 or 7. तो वहाँ भी फिर I saw कि अच्छा ये हो रहा है, and then girls who are just 12, 13 years old, they're not going in the sun because oh हम काले हो जाएंगे, और फिर हमेशा ऊपर से पता नहीं क्या दुपट्टे से कवर करेंगी एक्सेट्रा, जो पहले मैंने नहीं विटनेस किया था कभी भी। और फिर उसके अलावा बहुत रेसिज्म भी होता था हाई स्कूल में, जो उस वक्त रियलाइज नहीं होता था, बट नाउ आई थिंक दिस इज सो बैड कि इतने बच्चे बुली हुए हैं। पीपल हु आर डार्कर उनको हम काले कहते थे, या फिर विच इज हॉरिबल, जो बोलना नहीं चाहिए, एन वर्ड भी यूज हुआ है, यू नो, एंड हम्म। बिकॉज रैप सुनते थे, यू नो, हम्म। और वी थॉट ओ दिस इज सो नॉर्मल बिकॉज रैप में वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं। आई वॉज टेकन अवे फ्रॉम माई कंट्री एंड देन एकदम से जस्ट पुट बैक कि अब नाउ बिकम पाकिस्तानी। तो उसमें से आई कैन easily find contrast because I have seen के what life was like before, prior and after, because family and parents के attitudes just changed overnight, which was a huge cultural shock to me कि एकदम से इनको क्या हो गया है, because they were okay with all of this before और हम्म। अब they're not okay with this। हाँ। तो cultural जो एक burden होता है या फिर pressure होता है, I just saw that first hand as I was put back in Pakistan or returned to Pakistan। तो color red का भी ये था कि when I was living outside of Pakistan, again in various African countries, so wahan red was my favorite color. हम्म। So I would really love it. And then when I came to Pakistan और मैं school जाती थी, तो you know had to be cool and stuff. तो cool बनने के लिए you can't like red because red is too दुल्हन type, or you know। मतलब हाँ, आई थिंक अपीयरेंसेस भी बहुत ज्यादा वो होती है ना कि आपको किसी भी सलोन में ज्यादा खवातीन अपने बाल स्ट्रेट करवाती हुई नजर आती हैं, कम होती हैं जो एक पर्म के लिए आती हैं, वो भी आती हैं, जाहिर है ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो हम करोड़ों के मुल्क में नहीं दे सकते, लेकिन ज्यादातर होती हैं जिनको या तो शौक होता है या फिर उनको कहा जाता है कि तुम्हारे बाल थोड़े से फैले हुए से हैं तो तुम रिबॉन्डिंग करा लो या ये करा लो वो करा लो, तो मतलब हमें थोड़ा ट्रेन भी किया जाता है कि अपने हाल में खुश नहीं नहीं रहना। अभी हम्म जो हमने एग्जांपल्स सुनी, देवर आई मीन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द स्किन कलर जिसमें आदमियों को भी उसी तरह से जांचा जाता है कि कौन काला है और कौन जिसका किसका रंग साफ है लेकिन अम, हम्म अ, आपको जनरली मर्दों की दुनिया में क्या चीजें नजर आती हैं जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही कोई मतलब मुंह फेरा हुआ है इन्होंने लोकल ट्रेडिशन से और लोकल कॉन्टेक्स्ट से, और कुछ एक खास दुनिया के लिए हम्म कोशिश हो रही है अपने आप को होस्ट ऐसा बनाने की। हम्म दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो एक एग्जाम्पल जो आई गेस मैंने पहले भी बोला था कि शलवार कमीज के कलर्स बहुत डिम हो गए हैं। हम्म। बिकॉज अगर हम अपर लोअर से जाएं, बिकॉज मैं कराची से हूँ, तो उधर मैं देखती हूँ कि जो मर्द हजरात हैं वो
कलरफुल कपड़े पहनते हैं, मतलब पिंक भी होगा, येलो भी होगा, ग्रीन भी होगा. So you see all those colors celebrated, but urban city like Karachi में and even Hyderabad to an extent, mostly on the road men are wearing white or grey or black. अब खैर I guess गर्मी में इतना नहीं पहनते, but चलो function में they'll wear black. हम्म तो इस तरह के कुर्ते पहनेंगे तो उसमें भी कलर्स सारे मतलब गायब है. हम्म जबकि the more you go away from the city, so you see a lot more of that color appearing. So definitely this I feel, and obviously इसका और भी है, एक और reason है कि मतलब functional होता है city life, और मतलब ये भी सारी चीजें हैं. और फिर professional life में भी I see this concept coming in into men as well, where they feel that it's unprofessional to sort of have accessories perhaps. या फिर अगर जैसे रिंग्स बहुत एक कॉमन चीज है आई थिंक पूरे साउथ एशिया में, और रिलीजियस चीज भी होती है काफी लोगों के लिए, रिचुअलिस्टिक चीज भी होती है काफी लोगों के लिए, एक पासिंग डाउन भी चीज होती है कि लाइक दादा देते हैं टू देयर ग्रैंडसन्स या अब्बू के अच्छा दीज वर माय रिंग्स, एंड like how they wear a lot of rings, so that's now unprofessional, so you can't do that. Or हम्म and I guess men think कि wearing rings या फिर कंगन पहनने एक बहुत feminine चीज भी है और unprofessional भी है. And I don't know, ये concept भी obviously it's a colonial concept, because हम्म ये चीज this binary between क्या चीज प्रोफेशनल है और क्या अनप्रोफेशनल है, क्या हम्म मैस्कुलिन है और क्या फेमिनिन है. तो हम्म ये भी एक डेफिनेटली इसके भी काफी colonial है, यू नो हिस्ट्री है इसकी भी. मुझे ये भी बताएं जहरा कि आपने आपने ये तो बताया कि मतलब बचपन में भी इंसिडेंट्स हुए और ऑब्वियसली यू वर नोटिसिंग दीज थिंग्स एज यू वर ग्रोइंग अप, बट यू डिड मेंशन कि एक एक फेज था जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था हर चीज पे, और बहुत ज्यादा बेसिकली कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था. Can you please describe your angry phase related to all of this, and how old were you when all of this was happening? The trigger. Okay, so yeah, that's a good question, Haya. सबसे पहले तो trigger warning देना चाहूंगी to all family members and friends who might be watching, probably won't watch, that yeah, this is not to bring those memories back for you guys. But basically what happened was, I think 15 या 16 साल की होंगी, where everything like you said बुरा लगने लगा, and I was just very very angry with the world, because I think that was the point where एकदम से जो सारी चीजें कलेक्ट करी थी मैं अपने दिमाग में, जैसे जो मुझे फीलिंग्स और इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं जो गुजरी थी, जिसके बारे में मैं लिखती भी थी डायरीज में, एंड मतलब हर चीज मैंने रिकॉर्ड करनी होती थी. आई थिंक फाइनली एट दैट एज it just dawned upon me that, oh, अच्छा, so this is why all of this is happening. मतलब जैसे पहले आपके पास लैंग्वेज नहीं होता, और स्कूलों में बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ब्रिटिश डिक्टेटेड एजुकेशन होती है, जैसे ओ ए लेवल्स मैंने किया था अनफॉर्चुनेटली, जो मैं बोलूँगी डेफिनेटली, इवन दो आई वुड एक्नॉलेज कि प्रिविलेज भी था करने का, तो वो आई विल नॉट यू नो मतलब kind of demean that, or because a lot of people don't have that privilege and would like to do it, so of course it's important as well. लेकिन for myself I say, unfortunately I'll explain later why, but because it was informed so much by that कि मतलब वो पढ़ाते नहीं थे, और मतलब जो लोकल शायर हैं उनके बारे में हम नहीं पढ़ते थे, इवन तो मुझे हमेशा हर शायरी पसंद थी बचपन से. और मतलब जैसे इथियोपिया इजिप्ट में भी मैं रही हूँ, तो वहाँ अरबिक मुझे आती थी बिकॉज मैं वहाँ ही बड़ी हुई, तो फिर मतलब आई थिंक बच्चों के लिए इजियर होता है कि पता नहीं सब बोल रहे होते हैं, तो अभी तो मुझे नहीं आती बट पहले आती थी. तो उसकी जैसे कोई लोग बोलते भी थे मतलब नरेट करते थे शायरी, तो फिर मुझे बहुत मजा आता था एक्सेट्रा. तो इधर आके फिर एकदम से जस्ट फेल्ट कि इवन दो आई एम इन माई ओन कल्चर, बट लाइक हर चीज इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम मी, और आई एम जस्ट सपोज्ड टू बी following one medium, even though apparently मतलब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का एक नैरेटिव है, या हमें एक कंसेप्शन हमारे दिमाग में है कि वो बेहतर होते हैं, लेकिन अगर बेहतर होते हैं तो फिर वो लाइक डिफरेंसेस और मल्टीप्लिसिटी को एक्सेप्ट करेंगे, और वो मतलब करिकुलम में शायद वो लाना चाहें, अगर
मतलब अगर असल में उनकी जो क्या कहते हैं पर्पस है वो एजुकेशन है या सेलिब्रेशन है, लेकिन बेहतरी ये नहीं होती कि बस आप एक ही चीज को फॉलो करें, और अगर कोई बंदा या बंदी या बच्चा बच्ची कुछ और बोलना चाहे या कुछ और पढ़ना चाहे या उर्दू में बोलना चाहे तो फिर उसको पनिशमेंट मिल रही हो कि मतलब आप क्यों बोल रहे हो. So I don't think that this is like in any way a good education. This is also a continuation of colonial schools and education, right? कि punishment मिल रही है because आप अपने culture और अपने language को appreciate कर रहे हो और celebrate कर रहे हो. But anyway, back to that angry moment. तो basically ये बस context था कि ये चीजें हो रही थी background में. तो जब I think 15-16 साल की थी, फिर एक बहुत ज्यादा अजीब व गरीब सा एंग्री फेज आया जिसमें हर चीज बकवास थी, हर चीज घटिया थी. और अगर अगर मैंने आपको भी पहले बताया था ये एग्जांपल कि अगर कोई दोस्त मतलब बेचारी अगर बस अपने बाल गोल्डन कराना चाह रही हो या हाईलाइट्स या लो लाइट्स का जो भी फैशन था उस वक्त, तो उसको भी मैं बोलूँ कि मतलब ये क्या है, और उसको मैं जज करने लग जाऊं कि तुम तो शदीद कॉलोनाइज्ड इंसान हो और मतलब तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है, तो अपना दिमाग अपना है ही नहीं, तुमने बेच नहीं है. दिया अपना दिमाग, एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो इस तरह की ऑब्नॉक्शियस चीजें मैं बोलती थी और सोचती थी, और ऑब्वियसली सब तंग आ गए कि भाई ये क्या अजीब औरत है. मतलब एक तो सही है यार, तुमने सीख लिया है ये चीज, तुमने पढ़ ली हिस्ट्री, गुड फॉर यू, लेकिन हमें बख्श दो, मतलब हम कराएंगे हाइलाइट्स और डोलाइट्स. तो खैर, तो आई मतलब इट बिकेम सो एक्सट्रीम दैट आई थॉट कि फ्रेंडशिप नहीं रखनी चाहिए ऐसे लोगों की. और इस तरह बिकॉज ऑब्वियसली इतनी ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया था कि मतलब हर जगह से आई फेल्ट फ्रस्ट्रेशन एंड ट्रैप्ड एंड नोबडी वाज एंटरटेनिंग माय कॉन्वर्सेशन. तो अगर मैं बात भी करना चाह रही हूँ कि ओ अच्छा मैंने ये सीखा आज, और तुम्हें पता है कि मतलब दिस इज द रीजन कि ये करते हैं, और अगर छोटी भी चीज़ हो कि दिस इज द रीजन कि हम वाइटनिंग क्रीम लगा रहे हैं, और दिस इज द रीजन दैट दैट, तो फिर वो कहेंगे कि नहीं मतलब हर चीज को मतलब बढ़ाना चढ़ानी चाहिए, और यू नो कोई चीजों पे चुप हो जाना चाहिए. तो आई फेल्ट कि कोई मेरे कॉन्वर्सेशन को एंटरटेन ही नहीं कर रहा था. तो अगर मैं कुछ कहती थी तो वो शट डाउन हो जाते थे कि नहीं तुम बस सोचती हो, तुम वकील बन जाओ, मतलब हर चीज के सवाल है. तो खैर अभी भी वैसे तंग आते हैं सब कि मैं सवाल बहुत पूछती हूँ, दैट्स ट्रू. लेकिन उस पॉइंट पे आई थिंक बहुत उस लेवल पे एक्सट्रीम लेवल पे हो गया था. तो इंस्टेड ऑफ टीचर्स या फैमिली मेंबर्स जिनकी ड्यूटी है एक हद तक एथिकल ड्यूटी है कि वो एंटरटेन करें क्वेश्चंस को या वो समझाएं या फिर वो मुझे रिसोर्सेज दें या किताबें दें या बताएं मुझे कि क्यों तुम्हें ये फील हो रहा है, क्यों तुम जो सवाल तुम पूछ रही हो सही सवाल है, इसका ये जवाब हो सकता है. तो वो ऊपर से मुझे गैस लाइट, आई गेस अगर मैं बोल सकती हूँ, मुझे गैस लाइट ही करते थे कि नहीं इट्स यू, मतलब बाकी लोगों को तो मसला नहीं है, तुम्हारे भाई को तो मसला नहीं है, तो तुम्हें क्यों मसला. So I think that frustration was the reason also, and then obviously my anger too कि अच्छा हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है, और अब now I'm stuck in the system, और अब मैं internal hatred भी I guess थी कि oh my god मतलब मैं इतनी colonized हूँ, मैं सिंधी क्यों नहीं बोल सकती, मतलब मैं सही से उर्दू में क्यों नहीं बात कर सकती. तो काफी चीजें कि I think एक combination थी. और जो ऑब्वियसली उस टाइम में मुझे समझ नहीं आई कि सर्कमस्टांशियल भी होती हैं चीजें, मतलब हर चीज का ब्लेम लोगों पे नहीं डल सकता और अपने आप पे नहीं डल सकता. बट it was so basically that was that angry phase. And if you know matlab I don't know like her, if someone would even use you know a shampoo जिसमें कोई और चीज हो और एलोवेरा नहीं हो, तो आई वुड बी कि अच्छा आप ये क्यों नहीं ट्राई करती. Like annoying basically. What a annoying, pain. हाँ. really annoying. मुसीबत. हाँ. I know. So my purpose was just कि अच्छा like let's think about alternatives, you know, like I guess in my mind it was like अच्छा think of it, but obviously it's annoying for the other person कि भाई क्या है एलोवेरा का प्लांट खुद सांस रखो. लेने दो. मैं हाँ, तो तुम उगाओ जाके. exactly. So but I think that was important to go through that to realize कि okay that's not the right way to do it. Okay. Matlab, that is not at all the right way. And then also that was an immature way, obviously, and it's okay. Like I am fine with that Right. because that's how you grow. But
But now I've learned कि obviously nuance होती है हर चीज में. It's not about कि क्या क्या यूज कर रहा है और क्या पहन रहा है क्या देख रहा है. That's just an after effect. लेकिन मेन चीज सोच की होती है और लाइक विजन की होती है, आइडियोलॉजी की होती है. कई लोग इस तरह की चीजें नोटिस करते हैं, लेकिन वो बस ज्यादा यानी वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होते इन चीजों से। और लोग बहुत आराम से अपने कंधे उचका के कहते हैं कि हाँ अब सही है ना, ये तो होता है, दुनिया तो बदल रही है, तो ये तो होता ही है। लेकिन आप मुझे बताएं, क्योंकि आपका काम है इस पूरे इस पूरे फील्ड पे, और आपकी रिसर्च है, और आप मतलब अपने लिखने के जरिए भी कोशिश कर रही हैं, और आपने म्यूजिक के जरिए भी कोशिश कर रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमें क्यों बॉदर करना चाहिए कि हम कॉलोनाइजेशन को ठीक से समझें, और फिर हमें क्यों बॉदर करना चाहिए कि हम ट्राई तो करें कि एज ह्यूमन बीइंग्स हु लिव इन साउथ एशिया, हम कोशिश कर सकें अपने आप को टू सम एक्सटेंट डीकॉलोनाइज करने की, एटलीस्ट टू ट्राई टू डीकॉलोनाइज। हम्म. हाँ, आई थिंक काफी अच्छा सवाल है. तो आई थिंक मेरे हिसाब से जरूरी इसलिए बिकॉज कॉलोनाइजेशन एक बहुत वायलेंट प्रोसेस रहा है और है काफी हद तक ऑप्रेसिव. तो इसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट के ओ बस सिस्टम एक हिस्ट्री का हिस्सा था और बस एक दफा हुआ बस हो गया, नाउ मूव ऑन. कुछ काफी लोग कहते हैं कि बस हो गया ना, अब मूव ऑन, डोंट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट कैरी ऑन विद योर लाइफ, जस्ट डू योर जॉब, जो करना है करो. लेकिन इट्स नॉट दैट ना, बस इट्स नॉट कि बस हिस्टोरिकल इवेंट है. कॉलोनाइजेशन एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. और ये चीज हम अभी भी देख रहे हैं, जैसे अभी जो ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है दुनिया में. We can see that very very clearly that it is an ongoing process and it's a very dangerous one because not only is your home being stolen away from you and your land, but आपका culture, language, आपकी entire जो आपकी identity है वो भी आपसे छीनी जाती है उस process में. आई वुड लव टू नो ऑल्सो जहरा कि आपकी जो राइटिंग रही है, और स्पेशली जो अब आपका जो पोइट्री का जो मतलब किताब जिस पे आप काम हम्म. कर रही हैं, उसमें किस तरह की थीम्स ज्यादा इमर्ज हो रही हम्म. हैं, एज मच एज यू वर्कड ऑन द राइटिंग सो फार। हम्म. हाँ, सो आई थिंक उसमें इट्स प्रॉब्ली अ कॉम्बिनेशन, बट उसमें कॉलोनाइजेशन एज सच कोई मेन थीम नहीं है. पोइट्री कलेक्शन इज अबाउट वायलेंस एंड रेप कल्चर इन पाकिस्तान, और जो औरतों के साथ, ख्वाजा सियाम के साथ जो होता है. एंड उसका टाइटल सो फार इज टू बी अ रेप. तो डेफिनेटली इट्स अराउंड मतलब कंटेम्प्रेरी जो हमारे इश्यूज होते हैं एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ऑप्रेशन. एंड उसमें एक शायद एस्पेक्ट हो सकता है डिकॉलोनाइजेशन का जो मैं सोच सकती हूँ, व्हिच इज दैट जो सिंध में जो हेरिटेज टूमस्टोन्स हैं, उसमें जैसे मैं वहां गई थी और इसके जैसे मैंने तस्वीरें ली थी या कोई डॉक्यूमेंटेशन की थी, तो उस उन स्टोन्स में और जो वॉल्स भी हैं, म्यूरल्स भी हैं काफी, उनमें बहुत मजे की केव पेंटिंग्स की तरह मतलब आर्ट वर्क है जो काफी पुराना है. तो उसमें जो थीम्स इमर्ज होती हैं, उसमें डिफरेंट एनिमल्स हैं, हाइनास हैं एंड वुमेन है स्वॉर्ड्स के साथ और इस तरह. तो उसको मैं डिसाइफर करने की कोशिश करी और उसको क्रिएटिवली अपने इंटरप्रिटेशन में उसके बारे में पोइट्री लिख रही हूँ. तो ज्यादा मतलब रूरल लाइफ से थोड़ा सा अलग है उस वो वाला एस्पेक्ट, लेकिन बाकी तो इट्स अबाउट मतलब वही लाइक अब्यूज, रेप, मतलब हरासमेंट, ब्लास्फेमी, पुलिस केसेस, इस तरह. एंड और ये थीम्स किस तरह से इमर्ज हुई, लाइक व्हाट एक्सपीरियंसेस लेड यू टू like does it like it's actually I would love to know like is the process of writing poetry for you, like is it just like is it more organic, whatever moves you, or like is there a method to this madness, like if you are to publish a manuscript, like if you are to publish a book, like how does it, like how are you making it work for you कि इस चीज पे लिखना है, या is it more like if you flow into that into a certain direction automatically? हाँ, सो आई वुड से दैट इट्स डेफिनेटली अ फ्लो. तो अगर कोई चीज इंस्पायर नहीं करी मुझे, अगर मुझे लग रहा है कि
मेरी जिंदगी में उसकी अहमियत नहीं है तो उसके बारे में मैं नहीं लिखती. Even if it's popular, या even if it's the cool thing publishing world में, I would just not write about it because मुझे लगेगा कि बहुत एक सूडो किस्म की राइटिंग होगी और एक फोर्स्ड चीज होगी. तो डेफिनेटली उसी के बारे में मैं लिखती हूँ जिससे मैं इंस्पायर होती हूँ या जिससे मैं डिस्टर्ब होती हूँ या जिससे मेरी नींदें उड़ जाती हैं शायद, मतलब जो डीपली डिस्टर्ब करती हैं या इंस्पायर करती हैं. तो ये भी जो प्रोसेस था, इट वाज बिकॉज आई रियलाइज कि इतनी इनइक्वालिटी है, इतनी ज़्यादा पेट्रियार्की है, पितरशाही है, ओप्रेशन है. और obviously me as a woman, identifying as a woman, I experienced so much in Pakistan. तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, बट आई डिडंट वांट टू मेक इट जस्ट अबाउट मी कि अच्छा मेरे साथ क्या हुआ है. मुझे कलेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में बात करना था. और फिर जस्ट टू एक्सपैंड इट एंड मतलब बिकॉज इट्स मोर देन जस्ट मी, इट्स अबाउट कि सोसाइटी में क्या हो रहा है और हर किसी के साथ क्या हो रहा है. तो इसका डेफिनेटली फ्लो है, लेकिन जो मेथड होगा आई गेस वो ये होगा कि एक दफा वो चीज आइडेंटिफाई हो जाए कि क्या क्या थीम्स हैं या क्या चीजें हैं जिसके बारे में मैंने बोलना है, वॉइस आउट करना है, या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट इनफ हैं कि अगर इस तरह मैं सोचती हूँ कि अगर जैसे कल मैं फॉर एग्जांपल मर जाऊँ तो व्हाट इज दैट थिंग जिसके बारे में मैंने नहीं लिखा, जिसके बारे में मुझे लिखना चाहिए था. Because death is the end of all fears, right? Because obviously a lot of things are scary to do in Pakistan or write about in Pakistan. So nothing is greater than the fear of death, I feel, in a human being. So if that was the thing to happen tomorrow, so what is one thing that I should have written about or given voice to? So then that's how I approached this topic. And then I wrote those things down. And then once वो चीजें हो गई, then फिर वो इंटेंस रिसर्च होता है. फिर वो प्रॉपर मेथड होती है कि इसके बारे में रिसर्च करो. एंड देन मैंने जैसे काफी पुलिस केसेस लाइक एक्चुअली जाके खोले या फिर जो भी मुझे मिले मैंने देखे उसको. फिर वो ऑब्वियसली प्रॉपर लिस्ट बनती है, फिर अच्छा ये पढ़ लिया, टिक टिक टिक. फिर उसमें से कौन कौन लोग थे. फिर एंड देयर जस्ट नॉट एक्स वाई जी नहीं है, मतलब अगर कोई सोनिया है तो सोनिया ही है. एंड ऑब्वियसली मगर अनोनिमस अगर वो रहना चाहती है तो अनोनिमस ही होगी, फिर वो एक्स वाई जी हो सकती है. तो इस तरह से फिर प्रॉपर वो मैंने एस्टैब्लिश किया मेथड है. फिर अब उसी बहुत मुश्किल भी था कुछ एथिकली व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग. मतलब जरूरी नहीं है कि हर औरत ने अपने बारे में बताना है, जरूरी नहीं है उसको अपने स्टोरी भी मतलब चाहिए तो वो भी एक डिफरेंट आपको चीज वो भी नहीं था. करते वो नेसेसरली कि आप शायरी लिख रही हैं तो एग्जैक्टली वो आपको अपनी स्टोरी दें. एग्जैक्टली. Right. बट दिस इज मोर के जो पुलिस केसेस के बारे में जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. So Right. rather than speaking to women directly, this was more Right. ke analyzing, because this was about ke acha how is it treated in the system itself, like Okay. सही in the police system kaise treat ho raha hai. सही. तो उसमें trying to analyze ke acha would it be okay to talk about like write poetry on this case or not. तो फिर उसमें like extensive research ke did that person appeal for bail or not, did they try to accuse their rapist or not. अगर मतलब उसमें अगर जाहिर हो रहा है कि she just wanted to leave it और चलो सही है बस मतलब मैं lay off कर रही हूँ, तो फिर उसके बारे में फिर I just don't do that case. फिर मैं कहती हूँ नहीं, मतलब maybe she doesn't want that, but someone who's fighting for it और नजर आ रहा है कि बार 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 मतलब अपील हो रही है, वो आ रही है एक्सेट्रा हो रहा है, तो फिर उसके बारे में I feel like अच्छा I think she उसकी voice she would be okay with her voice in some sense. और ज़रा ये तो आप जैसे बात कर रही हैं इस वक्त ऑब्वियसली बहुत सेंसिटिव केसेस की, मैटर्स की, जिसमें आप इस वजह से फैसला कर रही हैं कि ये स्टोरी बतानी चाहिए या नहीं, कि आप बेसिकली दूसरों का ख्याल करना चाह रही हैं. आपकी इंटेंशन तो ये है कि कोई वायलेटेड ना फील करे, कोई किसी और को खतरा ना हो जाए. पाकिस्तान में लिखते हुए अपने आप को खतरे से आप किस तरह बचाने की कोशिश करती हैं? डू यू स्टॉप राइटिंग अबाउट समथिंग और डू यू राइट अबाउट इट इन क्लेवर वेज, or is there something else? Like, I don't want to give you two options and you have to pick one. हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो आई रिमेम्बर कि जब अंडर ग्रेड में थी तो मैंने कुछ लिखा था ब्लास्फेमी के ऊपर, और
मतलब एक असाइनमेंट का ही हिस्सा था, बट काफी ज्यादा मैंने इंटेंटली लिखा था एंड आई स्पेंट सो मेनी मंथ्स ऑन इट, तो इट बिकेम मोर देन जस्ट एन असाइनमेंट. तो लाइक आई थॉट कि अच्छा आई कैन maybe मेक दिस पब्लिक, या फिर मतलब शेयर कर सकती हूँ. तो आई स्पोक टू माई प्रोफेसर कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, बिकॉज आई नो काफी सेंसिटिव चीजें हैं. So it might be dangerous because मैंने बहुत ज्यादा इस तरह की themes लिए हुए हैं, but I also feel कि अच्छा it's at that point कि share हो सकता है, because I feel at the end of the day artist का काम होता है कि सही है create करे लेकिन फिर share भी करे, because अगर कोई पढ़ नहीं रहा है देख नहीं रहा तो फिर आप सही अपने लिए तो आप लिख रहे हो, वो तो अलग एक कैटेगरी होती है जो बस मेरी अपनी राइटिंग से जो कोई भी ना देखे. राइट. लेकिन एक वो भी तो होता है कि अच्छा आप शेयर भी करना चाहते हो कि मैंने एक रीजन से लिखा है. तो फिर उनका ये रिप्लाई था कि सूडो नेम यूज कर, डोंट यूज योर ओन नेम. सही है. So that was one method that I did think about, and I was close to using it कि अच्छा I can just publish all of those things from a pseudonym और किसी को पता नहीं चलेगा. But then I don't know, मुझे but then something didn't feel right for me personally, because I felt I'm still hiding myself doing that, because the themes I'm talking about are about people who have been, or myself who has been shamed into not being myself. या फिर जो हमारे ऊपर oppression होता है या जिनके भी ऊपर oppression etc होता है, तो आप एक तरीके से intimidate होते हो corner में through shame and through all of those tactics. So then I thought कि अगर मैं pseudonym use करूँ तो वो भी एक किस्म का hidden aspect ही है, और उस एक किस्म से I'm still hiding myself and still kind of giving light to their intimidation and to their tactics. So I would answer that by saying हाँ, then those things I did not publish, I didn't make public, because I feel like अब पता नहीं कोई solution मुझे अभी समझ नहीं आया for myself resolve करने के लिए. लेकिन मेरा ये होगा कि अगर अलाउड नहीं है या कोई एडिटर रिजेक्ट कर दे, या फिर अगर बहुत ज्यादा डेंजरस है, अगर एक पॉइंट तक मैं रिस्क ले सकती हूँ, मैंने बोला भी काफी बार कि आई कैन टेक द रिस्क, लाइक फिर वो मेरे ऊपर चीज आएगी. लेकिन अगर वो कोई बाउंड्री किसी के लिए क्रॉस करती है तो आई जस्ट वुड नॉट सेंड इट. फिर अब आई वुड जस्ट कीप इट प्राइवेटली कि फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ उसके बारे में. Right, and that's a choice that you are making, like keeping in mind के क्या आपको आपको किसी मौके पे क्या चीज बेहतर लगी है. I also want to know कि when you are writing and researching about these very real but very distressing subjects and people and their stories, चाहे आप रेप से रिलेटेड पुलिस केसेस का पेपर वर्क ही पढ़ रहे हो, but obviously this is one example you have given, and you've talked about blasphemy, and you've talked about multiple I'm sure there are multiple other subjects that you're sort of trying to tackle through your writing. uh, uh, how like how do you ensure that just mentally you're well taken care of while you're just doing these deep dives into these very dark realities? I mean, I can't even call them subjects because it feels like अच्छा एक चीज है जो पढ़नी है. मतलब आप खुद भी उससे ट्रिगर हो सकते हैं, आपके साथ भी कुछ हुआ हो सकता है, और आप एक दफा तो एक चीज पढ़ रहे हैं या शायद कई बार पढ़ रहे हैं, but then you're writing it, then you're editing it, and then you're probably rewriting it, and all the uthal-puthal that happens before the words actually come out. How do you do you actually take care of yourself in some ways during all of this? Wow, Haya, that's the first time anyone has ever asked me that. So, pehle to thank you for asking me that. Yeah, that's such a good question. I think I think I don't take care of myself when I'm going through this process, because वो बस consume कर देता है मुझे, because इतना ज़्यादा intense होता है और इतना disturbing होता है, इतना distressing, और obviously मेरे अपने personal triggers भी निकल आते हैं और काफी चीजें personal भी हैं, तो वो एक पता नहीं क्या बहुत ही एक अजीब space में चीज चली जाती है. लेकिन I feel that
perhaps that's just the sacrifice I have to give in order to really write a real account of my personal experience and also what I feel within the society. Because without that grief and pain or disturbing thoughts and nightmares and sleepless nights, so here I don't know, I don't think it's fair to even write about these things without that. Especially if I'm looking at other women or मतलब ancestral violence भी अगर मैं देख रही हूँ तो फिर मैं अपने आप को स्पेन से डिवोर्स कर ही नहीं सकती बिकॉज फिर तो बहुत ज्यादा ही सुपरफिशियल होगा और बहुत ज्यादा लो रिस्क चीज होगी तो आई वुड थिंक कि या आई मीन I think it's necessary, but to take care of myself because obviously I still have to go through the process and I still have to write at the end of the day. I think इस तरीके से शायद होता होगा कि वो process जब हो जाता है पूरा sleepless nights का और रोने धोने का और फिर जो भी वो जो blur हो जाती है and then I write and do all of these things. फिर उसके बाद I guess I just realized कि अच्छा there's more appreciation for life के oh wow I'm still alive जबकि कुछ भी हो सकता था मेरे साथ और मतलब मैं कहीं भी पैदा हो सकती थी और मैं मतलब किसी भी फैमिली में आ सकती थी मैं शायद क्रिश्चियन हो सकती थी या मैं हिंदू हो सकती थी या शायद मैं लोअर इनकम क्लास से बिलोंग कर सकती थी आई डोंट एनीथिंग कुड हैव हैपेंड तो so just to kind of give back respect and realize that it's not really in my control where I am or who I am because who I am is also shaped by how I was born. Right, where you were I born. guess then absolutely. where I was born, who I was born into, or उनके सब कुछ. Second, like countries ये वो. So I guess फिर appreciation of life होती है and just giving back gratitude के अच्छा just I guess just I don't know, thank you for being yourself, or I'm sorry that you had to go to that out of no fault of your own. Yeah. And I suppose I just connect more with nature or just try to get out of my bubble, I suppose. Right. I mean, yeah, like thank you for doing what you do for sure, because it's not easy. It's also often, I think, it's very invisible, right? In some ways, I think like writing is it's such a private, or if not private, like it's such an invisible process. Like when I'm making a film, there's always people who will buck you up because they will see you going on a shoot and carrying a camera, right? So it becomes like a more dunyavi kind of a process where people see you that you're making a film, right? Or you're traveling to somewhere. So there's more like open gestures of like encouragement sometimes, or like some empathy from a friend. Ke, oh, like this sounds like a hard film to make. Like I hope you're doing okay, but I'm sure, I mean, obviously, it's not necessary that you write in front of like 10 people. And I'm sure, like, you have people You around you who don't, still know, like, the people close to you might still know what you're writing on. But I think it's definitely it's less showy in a way, right? Like, you're really like, when you're writing, you could be writing an email or you could be writing like something for your book. We will never know. So you kind of probably are doing all of that in a more private, slightly secluded way. I don't want to stereotype writers के बस वो कोने में no, बैठे but रहते हैं. please stereotype. Are you that Because writer who just this like goes in a corner and 100%. right? This is 100% true, at least for me. मतलब it's always that corner, I and see. it's always post midnight जब सब सो रहे हो, because तब फिर मतलब कोई disturb नहीं कर तब सकता. निकल के आता है, हाँ. हाँ तब निकल के आता है कहीं से. And it's always locking the door. It's always मतलब throwing pens ये भी होता है. But अब तो खैर हाँ, but laptop has made things easier. Okay, like चलो just like type. लेकिन हाँ, it's मतलब nobody knows. It's very isolating. जब I think writing process चल रहा होता है तो 10 days तक मेरा फोन ऑफ होता है और किसी को पता भी नहीं होता ये कहाँ है. फिर मुझे बाद में बहुत गालियाँ और धमकियाँ पड़ती हैं कि ये कोई तरीका नहीं होता. मतलब बंदा बता सकता है कि देखो I'm going into my writing cave या कुछ भी और फिर आप बंद कर दो. लेकिन चलो से I'm working on that. लेकिन the point is कि once it starts, I'm just like अच्छा no contact, nothing.
just in one space, just in my room for 10 days. Hmm. Wow. And And but the yeah, sorry, you were saying something. no, no, that's it. Yeah, No, you I was can just go. saying that the fact that none of the dhamkis have actually materialized means that you can actually, without announcing it to anyone, go and shut your phone because, like, clearly, like, people are not uh, fulfilling their promises about any dhamki, right? So I think ठीक है, कौन I don't Okay, think that's a good I mean point. maybe like immediate family should know where you are, like like Yeah, yeah, they they know know. Varna you're to I will die. I will yeah die yeah before I complete any book. any sentence is written because yeah I think apart from Yeah. that मतलब ठीक है ना but this is also a way of living हमें लगता है कि हमें हर बात ऐलान करके बताना है कि फेसबुक अब मैं अपना बंद Hmm. कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आऊंगा 10 दिन मतलब ठीक है यार तो खैर हो गई आप मतलब आप कूल राइटर हैं आपको है ये आपके पास मतलब हक है आपके Thank you, Haya, for enabling me. I'm so happy. और ये record पे भी है. और ये Thank record पे you. भी है now like you have this license you have been granted this and you should just Thank run away you. with it or I'm very curious to know that when you did go to when you went to Mills College Hmm. और आपने बताया कि आपका थीसिस का काम भी इससे कनेक्टेड था जिसको आप मतलब जिसका भी आप जिक्र कर रही थी तो वहां पर ऑब्वियसली राइटिंग प्रोग्राम में आप थी um, तो वहां पर क्या चल रहा था essentially like what was happening on the ground over there in terms of you writing and you creating uh, and uh, your faculty and your fellow students consuming what you were creating in a way. Hmm. हाँ, that's really interesting because शुरू में of course it was my first time कि मैं um, मतलब गोरों से तो पब्लिकली अपनी राइटिंग शेयर करी हूँ वर्कशॉप्स के अंदर और मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी शेयर कर रही हूँ मतलब उससे पहले तो सिर्फ लोकल कॉन्टेक्स्ट में ही मैंने शेयर किया था तो वो ऑब्वियसली एक यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि अच्छा अब डिफरेंट वॉइसेस और डिफरेंट लोग देखेंगे और जज करेंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मुझे फेस हुआ वो ये था कि बिकॉज इट वाज बाइलिंगुअल मुझे था कि अच्छा इनको तो समझ नहीं आएगी यार चीजें तो अब मैं इसका क्या करूँ या फिर कोई रेफरेंसेस या कॉन्टेक्स्ट होते हैं जो बहुत देसी होते हैं या बहुत ज्यादा मतलब लोकल होते हैं जो नहीं समझ आते ना अगर कोई ना नहीं रहा उधर तो फिर वो चीजें आई वाज लाइक इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूँ या शुड आई ट्रांसलेट इट शुड आई नॉट ट्रांसलेट इट should I put a footnote मतलब should I explain it should I send an email मतलब because उनको समझ भी आए ना कि लिखा क्या है या उनको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आए तो शुरू में मैंने ऐसी चीजें की थी कि मैंने मतलब पोएम के नीचे फुटनोट्स डाले हुए थे जो पोएट्री में कभी होता नहीं है कुछ पोएम बस एक पोएम होती है वो एकेडमिक पेपर नहीं होता तो मैं फुटनोट्स डाल के एक्सप्लेन करी होती थी दिस गोला गंडा इज एक्चुअली इट्स एन आइस cream type thing An in ice Pakistan. lolly. Yeah, ice lolly, but it has flavor on it, like red and blue and yellow. First, but then I did speak to my professors. I'm feeling this dilemma, or मुझे बस like I don't understand कि मैं क्या करूँ. So then they themselves noticed that listen, you don't have to write all of these things. I don't know why you're doing extra Mhm, emotional labor. मतलब mhm. already आप लिख रही हो, मतलब आप create कर रही हो, और फिर ऊपर से आप footnotes भी हमें दे रही हो कि you don't have to spoon feed us. I want to ask you one final question और वो ये है कि Okay. अगर आप मतलब आपकी कोई बात इस वक्त सुन रहा हो एंड समवन इज एक तो ये कि अंडरस्टैंडेबल कि इस वक्त दुनिया में ट्विटर भी है और इफ समवन इज 13 14 अराउंड द सेम एज दैट यू आर गोइंग थ्रू योर लाइक metamorphosis in a way people have some resources but if I were to ask you a rather oversimplified question okay, what are some of the few steps um, through which someone can try to start decolonizing themselves? And now we know that it's not about the dress or the food, it's about what's happening here. हम अपनी सोच को बदलने की भी बात नहीं कर रहे हम अपनी सोच को थोड़ा सा ऑल्टर कैसे कर सकते हैं हम Hmm. अपने आप को देखते हुए बेहतर कैसे फील कर सकते हैं किसी से अननेसेसरली इम्प्रेस कैसे नहीं होना है are there readings you want to suggest are there practices that you want to suggest are there ways of thinking or ways of looking at the world that you want
to suggest for anyone. They don't have to be 13, they could be 63 and going through a phase कि यार ये कुछ हो रहा है, क्या करें हम to be to just try to play a part like in our journeys ourselves. Okay, हाँ, I think that's a really, really good question. So I would say कि सबसे पहले that I would personally suggest is कि just to read your history and read a lot. That will be the first process. कि just read, and don't just read your own literature. आप सब अपने country या सूबे के बारे में ना पढ़ें, आप बाकियों के बारे में भी पढ़ें. आप ये भी देखें कि अमेरिका बना कैसे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैसे बना, और जैसे इसराइल का स्टेट कैसे बना, और मतलब अफ्रीका में क्या हुआ, और हर चीज़. तो आई वुड से दैट वुड बी द वेरी फर्स्ट थिंग, बिकॉज आई जनरली बिलीव कि हमारी सारी जो ऑपरेशन होती है वो कनेक्टेड होती है. तो अगर जितना आप दूसरों के बारे में पढ़ेंगे आपको अपना ही ज्यादा एहसास होगा. तो कुछ जो मेरे दिमाग में बुक्स आ रही हैं, वो एक है इंग्लोरियस एम्पायर, शशि थरूर का, सॉरी, दैट्स अ गुड बुक. देन इंसर्जेंट एम्पायर है, गोपाल नाम है राइटर का, वो भी एक अच्छी बुक है. उसके अलावा एक और किताब है कि हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, आई बिलीव ये टाइटल है. वो भी काफी एक मजे की बुक है. उसके अलावा आई वुड जस्ट से कि जस्ट डिस्कवर एंड जस्ट रीड अ लॉट अबाउट हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा एक फोकस होना चाहिए. एंड डजंट हैव टू बी एकेडमिक, नहीं होना जरूरी नहीं एकेडमिक हो या Right. उसका फैंसी कुछ हो. इट कैन जस्ट बी, ये सारे बस नॉर्मल बुक्स ही हैं, मतलब Right. हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं. आप हिस्टोरिकल डायरीज, इवेंट्स पढ़ सकती हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ आप कर सकती हैं. Number two, I would say, is that because history is not just in the form of writing and historical accounts through this one limited medium, काफी हिस्ट्री स्पेशली हमारे सूबे की हिस्ट्री बहुत ओरल है. मतलब एंसेस्ट्रली कैरी फॉरवर्ड होती जाती है, और एक जैसे किसी को कहानी बताते हैं या गाना गाता है, गीत गाता है, तो उससे भी कैरी फॉरवर्ड होती है. तो आई वुड से कि लिसन टू म्यूजिक, लोकल म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक. जो सेंस के लोग हैं वो बिट्सा प्लीज एक दिन बस चले जाएं, तो आप जा सकते हैं और आप बैठ जाए, बस सुने और उनके कलाम सुने. और आप अगर पंजाब में हैं तो बुल्ले शाह पढ़ें, या वहाँ भी काफी मतलब गाने और कलाम गाते हैं, पढ़ते हैं. कसूर में भी बहुत होते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं, या जो भी आपके एक्सेसिबल है. कहीं भी, अब बलूचिस्तान में हो, केपीके में हो, कहीं भी आप हो. बलूचिस्तान में अगर आप एंड तब तो अगर आप पे मतलब एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन तो हो ही रहा है बेसिकली, लाइक हो रहा है, वो इट्स अ तो लिविंग बहुत ब्रीदिंग लाइक एक्सपीरियंस फॉर सो मेनी पीपल. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. वो तो उनको तो पता ही होगा. आई डोंट थिंक दे एग्जैक्टली, हाँ. इवन नीड दे एनी don't need एडवाइस an education फ्रॉम on मी. this, yeah. Exactly, they don't need anything like that. Exactly. So I guess this is more for जो urban class है, suppose, Right, जो right. recolonize होना चाह रही है. तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि हाँ, जस्ट अपने जो भी आपका रीजन है, जो भी आप जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी आपके लिए इजी है, यू डोंट इवन हैव टू गो देयर, आप बस यूट्यूब खोल के आप सुन सकते हैं. तो आई थिंक गाने के मीडियम से भी काफी चीजें वाजे होती, तो उससे भी चीजें मतलब क्लियर होंगी. और इसलिए मैं गाना कह रही हूँ बिकॉज काफी लोग शायरी नहीं पढ़ सकते या नहीं समझ सकते, और मुश्किल भी होती है काफी हद तक. तो उसमें गाने से ना मतलब आई थिंक क्लैरिटी मिलती है, और आप जरूरी नहीं है कि आपको फुल लैंग्वेज भी पता हो. तो फोक सॉन्ग और ये सारी चीजें. और नंबर थ्री, आई वुड से कि जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी अगर जिंदा हैं, या अगर नहीं भी हैं, रिलेटिव्स हैं या पेरेंट्स हैं, या चलो अगर कोई भी नहीं है तो किसी और के अगर हों, मतलब दोस्त के हों, या उनसे बस आप बात करें और बस पूछें कि मतलब क्या होता था आपके बचपन में, क्या होता था आपके जमाने में, क्या होता था, या जस्ट जनरली मतलब उनसे पूछें कि वो कैसे जीते थे और क्या चेंज आई है, और मतलब क्या मतलब उनका क्या कॉन्सेप्ट था काफी चीजों में. जैसे मॉडर्निटी के दौर में हम रह रहे हैं अभी, पोस्ट मॉडर्निटी शायद है, तो काफी चीजों में शिफ्ट आया है, जैसे लाइफस्टाइल में, सोच में, रहने में. तो फिर उनसे भी सीखें, तो मतलब काफी चीजें वो बताएंगे जो सदियों से चली आ रही है. तो फिर आपको पता होगा कि अच्छा ये तो काफी रूटेड चीज थी, बिकॉज काफी लोग सिमिलर चीजें बोलेंगे.
उसके बारे में, मतलब ना काफी इंस्टेंसेस उनके सिमिलर होंगे। हम्म तो इसमें आई थिंक आई कैन ऑल्सो रेकमेंड, कराची में और लाहौर में सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान है। हम्म उनका काम है कि वो रिकॉर्ड करें ओरल हिस्ट्री। हम्म मैंने काफी अम, मतलब काफी काफी लोगों को इंटरव्यू किया हुआ है जो मतलब ओल्ड एज में थे, जो काफी लोग जो पार्टीशन से गुजरे थे। और ये सारी चीजें, तो उनकी कहानी बस आप सुने, मतलब काफी सीखने को मिलता, लाइक हम्म लोगों के अकाउंट सुने। एंड देन नंबर 4 आई वुड से कि इसमें आई वुड जस्ट से कि ये मतलब कोई उस तरह मटीरियलिस्टिक बात नहीं है, या खरीदने की बात नहीं है, या पहनने की बात नहीं है, बट आई जस्ट थिंक कि जो लोकल क्राफ्ट्समैन होते हैं, अगर अब बस उनके पास जाएं और देखें कि वो किस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम्म और वो कैसे सिलाई कैसे हो रही है, या कैसे मतलब अगर कोई जैसे अजरक बना रहा है तो किस तरह से वो प्रिंटिंग हो रही है, अगर आपको शौक है उन चीज़ों में, तो राइट उससे भी काफ़ी मतलब आपको काफ़ी ट्रेडिशन और कल्चरल एस्पेक्ट्स नजर आएंगे। और जिस तरीके से वो करते हैं अभी भी बहुत 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 ज़्यादा, बहुत ट्रेडिशनल है, और वो लिटरली कंटेन हुआ हुआ है। आई फील लाइक हम्म वो नहीं हुआ कॉलोनाइज, जो लोग हम्म कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उन ट्रेडिशन को। हम्म तो उनको अगर आपने नहीं भी खरीदा, मत खरीदे, मत पहने, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि आप जाके देख लें। या फिर अगर हाँ किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो यू कैन जस्ट वॉच इट, मतलब जो राइट अमेजिंग हया की तरह फिल्म मेकर्स हैं जो हमारे लिए बनाते हैं, हमारे लिए एक्सेस इजी करते हैं, तो उनके आप देखें। और लोकल भी हो सकता है, अगर आप कराची में रहते हैं, कोई भी आपके लोकल हम्म मतलब कढ़ाई बनाने वाला या हाँ कोई भी बाजारों में हो रहा होता है दर्जी बिल्कुल और सर बाजारों में हो रहा है, तो यू कैन जस्ट सी कि वो क्या प्रोसेस है, जो हैंडमेड प्रोसेस है। हम्म तो आई फील लाइक हम्म उसमें बहुत ज्यादा एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट छुपा हुआ है, और बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल लोकल एस्पेक्ट छुपा हाँ हुआ है जो कॉलोनाइज नहीं हुआ। तो वो आप देख सकते हैं। आई थिंक फिफ्थ वो जस्ट भी, जो शायद मे बी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। बिकॉज ऑनेस्टली ये पूरा जो प्रोसेस है, ये बहुत सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है, और आई थिंक थ्रू योर ओन सेल्फ रिफ्लेक्शन आप और लोगों को अवेयर करा सकते हो। हम्म बिकॉज जब इवन दो शायद कोई चीजें कोई लोगों को परफॉर्मेटिव लगती हों कि अम, जैसे ऑब्वियसली जब मैं छोटी थी तो चूड़ियां पहनना बहुत लेम होता था, या बहुत स्टूपिड समझा जाता था, या हम्म बहुत देसी था ना कि राइट चूड़ियां कौन पहनता है, राइट राइट और वो भी लाल चूड़ियां अगर हाँ कोई it पहने wasn't तो वो cool तो बस, हाँ it इट wasn't cool वाजंट at कूल all एट ऑल। एंड देन यू सी के काफी जो वर्किंग वर्किंग इनकम की औरतें होती हैं, जैसे आई डोंट नो, शायद अगर कोई अर्बन कोई है तो उसमें, अगर शहर का कोई बंदा है, अगर उनके घर में कोई औरत आती है, या हम्म मतलब बाजी आती है सफाई करने या जो भी, हम्म तो लाइक मोस्टली चूड़ियां पहनी होती हैं उन्होंने। हम्म एंड इट्स नॉट अनकूल देयर बिकॉज ये बस कल्चरल पार्ट है, मतलब राइट भाई इतनी की। तो तो आई वुड जस्ट से कि just self-reflect, like what are the things that you're finding lame or uncool or weird about our culture maybe. And maybe अगर even if you're 70 years old, I'm sure आपके भी दिमाग में कोई चीजें होंगी जो आपको लगता है कि अच्छा ये तो इस तरह नहीं है, या हाँ जो भी, और ये तो ये है, और हम प्रॉपर ऑफिस में बस टाई पहन के जाते हैं, और इस हम्म तरह सूट पहन के हम्म जाते हैं, बटन होना चाहिए। तो हम्म ये भी कहीं से आया है ना, तो आप उसके बारे हम्म में भी आप सोच सकते हैं। सिर्फ हम्म चूड़ियों की बात नहीं है, उसकी भी बात है। तो छोटी छोटी चीजों में आप बस शायद ऑब्जर्व करने लग जाएं कि हम्म लाइक इवन दो, मतलब ऑन द सरफेस लग रहा है कि बहुत एक्सटर्नल और छोटी चीज है, राइट लेकिन असल में इसके पीछे बहुत ज्यादा हिस्ट्री और पॉलिटिक्स है। सो डेफिनेटली सेल्फ रिफ्लेक्शन आई वुड से, हाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन। एंड एक बस मैं कॉन्शियस, एक बस एक नोट डालूंगी कि आई जस्ट फील कि डीकॉलोनाइजिंग इजंट अबाउट कि आप दिख कैसे रहे हो, या आप राइट बातें कैसे कर रहे हो, या आपका एक्सेंट कैसा है। हम्म उर्दू का अगर आपका परफेक्ट वो वाला हाँ लखनऊ लखनऊई इम्पोर्टेड उर्दू है, हाँ, या फिर आपका कौन सा, या फिर पता नहीं क्या है, आपका पंजाबी मिक्स है, या हम्म इवन काफी उर्दू स्पीकिंग लोग, जैसे बहुत रेसिज्म है अगेंस्ट अदर बहुत ज्यादा एथनिसिटीज, पंजाबी लहजे के अगेंस्ट लहजे के बारे में भी कहा जाता सिंधीज, है ना कि साफ है लहजे, या नहीं है मतलब हाँ जैसे साफ, वंस हाँ एग्जैक्टली वो भी। व्हाट डू यू हाँ हाँ मीन साफ लहजा, हाँ आप क्या लगता है कि सिर्फ आप ही किंग है यहाँ पे मतलब हाँ एग्जैक्टली, तो लहजा भी साफ होता है और घटिया हाँ होता है, या जो भी हाँ होता है।
हाँ तो उसमें भी उसके बारे में भी आप सोचें कि मतलब ये भी नोशन कहाँ से आया है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो कोई परफेक्ट है, ये चीजें करे, टिक मार्क करे चीजें, मतलब अगर आपकी सोच सही नहीं होगी तो बाकी चीजें मैटर नहीं करती। exactly. Thank you so much, Zara. Thank you so much for all of your time and the conversation. Yeah, thank you, Haya, so much. It was so fun. It didn't even feel like, oh, An something to do. interview. It just felt, yeah, an interview. It just felt like a normal conversation. Thank And you. thank you so much for your patience Yeah. and thoughtfulness as well. I think that's very important. It should be highlighted. Not every person has that in them, but you definitely do. Thank you so much. Thank you, Zara. Thank you.